अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक 9th स्टैंडर्ड के क्लास के जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़ भी बोलते हैं, उसको तिಳಿ कन्नड़ भी बोलते हैं। सो 9ನೇ तरगति द्वितीय भाषे कन्नड़ मीन्स तिಳಿ कन्नड़। तो इस किताब से जो है गद्य भाग यानी लेसन पार्ट में दूसरा चैप्टर आता है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कौन सा चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर इट्स रिलेटेड टू द ट्री, पेड़ के बारे में। कोई गेस कर सकती? हाँ, तो गेस कर को तुम्हें कमेंट डालो। तो अरली मरा कर को है ना, तुम ना मालूम है नहीं। अरली का पेड़ जो पीपल का पेड़ बोलती, तो वो पीपल के पेड़ के रिलेटेड और एक स्टोरी जैसा भी फॉर्म होता है और एक कम्युनिकेशन भी है। तो उस तरह की आज हमें एक सबक सीखेंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म का सबक है। तो सबक का नाम है अरली कट्टे। ओके, तुम स्क्रीन में भी देख सकती हैं अरली कट्टे कैसा रहता है। तो अरली कट्टे का रिलेटेड आज हमें लेसन करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ने को जाता हूँ, एक मॉडल रीडिंग रीड कर को तुम ना, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। ओके, तो पहले अब हमें लेसन पढ़ेंगे एक बार। अरಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಠ 2 ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು डॉक्टर PGL स्वामी। सो पुटದ संख्ये 10, पेज नंबर 10 ओपन कर लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और उंगली रख लो, फॉलो करो मुझे। पाठ प्रवेश ಲೆಸನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್। ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅರಳಿ ಮರ, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಮಾನವನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಮರದ ಗುಣವನ್ನು ಅರಿತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾಗರಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆಡು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 10 ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ 100 ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ಹೌದು. ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೆರೆದ ಕಡು ಬಡತನದ ಶೇಷಪ್ಪನ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ತಿರುಳು. ಇಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಲೇಖಕರ ಆಶಯ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಸನ್. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸು 75ರಿಂದ 80 ಇರಬಹುದು. ಕೃಶವಾದ ದೇಹ, ಕುಳಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ಕಿವಿಯಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವನ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೇಷಪ್ಪ ಎಂದೇನೋ ಹೆಸರು. ಈತನಿಗಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ, ಕಣ್ಣು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಈ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹೊರೆ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಹೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಗೋ ಸೇರಿದ್ದು. ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಏನೋ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದವು. ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 11. ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ತಂದೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧರು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪಂಚೆ ಪಾತ್ರೆ, ಉದ್ಧರಣೆ, 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 2 ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ, 1 ಅನಂತ ವಸ್ತ್ರ, ಇವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸೋದರತ್ತಿಯವರ ಕೈಲಿಟ್ಟು, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರವೇರಿತು. ನನ್ನ ಋಣ ತೀರಿತು. ಯಜಮಾನರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಋಣದ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು
ಹೊರಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಸೋದರತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಅವರದಾದ ಬಳಿಕವೇ ನನ್ನದು. 4-5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನಶಾಂತಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಯಿಸಬಾರದಮ್ಮ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡಮ್ಮ, 4 ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾಚಿಸುವುದೇ ನನಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದೇಕೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು 2 ಪೇಜ್ ಓದಿದೆ. 2 ಪೇಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 2 ಪೇಜ್ ನಾನೀಗ ಓದಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ. अरली मतलब इट्स ए पीपल का पेड़. कट्टे में मतलब एक स्टोन बेंच. अरली कट्टे, ये लेसन पार्ट 2 है, यानी लेसन नंबर 2. सो 2. अरली मतलब पीपल. ओके, पीपल ट्री. उसका जो है उसके अतराफ एक स्टोन बेंच बन को रहती, यानी जो पत्थरों से, और उसको देख सकते पिक्चर में दिखा रहा हूँ उधर, तो उसको स्टोन से बना हुआ एक कट्टे के जैसा बन को रहती. स्टोन बेंच इंग्लिश में बोलती. सो अरली मरा रहता है, पीपल का पेड़ रहता है, तो उसके अतराफ जो है एक लेवल तक आदमी आको बैठे जा, उस पर सोए जा, ओके, अपने कामों काज करे जा, तो वहाँ पे एक कट्टे के जैसा स्टोन से, पत्थरों से बना जाता है, तो उसको कहते हैं कट्टे. अरली कट्टे. ओके, ये जगह को बोल रही. सो ये बैठने की जो जगह आती है इसको बोलती है अरली कट्टे. पीपल का झाड़ और उसका कट्टे जो कि स्टोन में बनी. देखो पिक्चर में दिखाता हूँ. अरली मरा ये हो गया, पेड़ है कुछ इस तरह से. अरली मरा आता है, अरली का पेड़ इस तरह से रहता है. ओके, तो और एक पिक्चर भी दिखाता हूँ. देखो यहाँ भी दिखा रहा हूँ. अरली मरा, पीपल का पेड़, 2 भी पीपल का पेड़ इच्छे. समझ में आया. तो ये पीपल का पेड़ है, तो उसके अतराफ देख सकती हैं स्टोन से उसके बिठा को सीमेंट करा कोई. नागरा कल्लू प्रतिष्ठापने कर को, यानी वो नाग भगवान को भी उन नाग देवता मानती ना, तो उनकी भी मूर्तियां रखो, वो पूजा पाठ करती हैं, उसको नागरा कल्लू बोलते. ओके, तो ये इस प्लेस को बोलती है अरली कट्टे. ये जगह है नहीं, ये अतराफ ये बन को ही ना अरली कट्टे. समझ में आया बच्चों. ये प्लेस को बोलती है अरली कट्टे. ये जगह को अतराफ ये पेड़ की जगह क्या बनी है, उस पेड़ के नीचे जो कि अरली मरा है, तो उसको बोलती अरली कट्टे. ओके, तो इसको लिखा है डॉक्टर BGL स्वामी ने. ऑथर इस सबक को लिखा है BGL स्वामी, तुम्हें देख सकती. तो उनका एक बचपन का जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को अपने एक किताब में लिखे, तो सबक से, उस किताब से सबक को लिखो जो कि अरली कट्टे. तो इन्होंने डॉक्टर BGL स्वामी इन्होंने ये सबक को लिखो ही. सो अरली कट्टे सबक को लिखो ही. सो डॉक्टर BGL स्वामी. डा मतलब हाँ डॉक्टर, PhD करे रहती, तो उसके वास्ते उनको डॉक्टर बोलती. डॉक्टर का तो मरीज को देखने वाले डॉक्टर नहीं. ओके, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, किसी पे जो है PhD करे रहते उनको डॉक्टर बोलते. तो BGL स्वामी इस सबक को लिखे. अरली कट्टे का तो तुम्हें एक आइडिया मिला. अब हमें इंट्रोडक्शन, लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाह रही, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड जो है हमें उसकी तरफ जाएंगे. तो ऑलरेडी पढ़ को सुना है, उसी तरह आप रीडिंग प्रैक्टिस करो. अगर नहीं पढ़ना आ रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो मेरे जो है बेसिक क्लासेस भी करता हूँ इसी चैनल में. ओके, तो बेसिक क्लासेस जाको अटेंड करो. ओके, उसके स्टेप्स और जो जिस तरह से फॉलो करको तुम्हें करना, प्रैक्टिस करना बताऊँ, उसके थ्रू तुम्हें प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा लेसन रीडिंग राइटिंग ईजी से आ जाता है. हर रूफ को कैसा लिखना, कैसे पढ़ना, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना, ये भी सुधार कर को हूँ. अगर तुम्हें 9 तक भी आकर जो है लेसन रीडिंग राइटिंग में तुम डिफ़िकल्टी हो रही है, मुश्किल हो रही है, प्रैक्टिस नहीं मिला या मौका नहीं मिला, तो अभी भी जो है इसी चैनल में बेसिक कन्नड़ा क्लास कर को तुम्हें जाओ, तो उसमें तुम्हें पूरा डिटेल से बेसिक समझा कहूँ. तुम्हें वो फाउंडेशन क्लास वो सीख ले, तो ये सब पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. सो पाठ प्रवेश लेसन इंट्रोडक्शन अरಳಿ कट्टे. लेसन इंट्रोडक्शन. ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳು, कुछ पेड़ और पौधे. ओके, प्लांट एंड ट्रीज. ಗಿಡ ಕತ್ತೋ प्लांट, ಮರಗಳು ಕತ್ತೋ ट्री. कुछ प्लांट एंड ट्रीज ನಮ್ಮ हमारे समीपदल्लिद्र, हमारे करीब रहे तो भी, कुछ प्लांट, कुछ पौधे, कुछ पेड़ जो है हमारे करीब रहे तो भी हम ऐसे गफलत में रहते हैं कि अवुಗಳ उपयोग, उनका फ़ायदा, उनकी गुण लक्षणಗಳು, उनकी खूबियाँ, उनका फ़ायदा यूजेस, उपयोग का तो यूजेस, उनके फ़ायदे, गुण का तो कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, गुण लक्षणಗಳು मतलब उसके खूबियाँ,
तो कुछ पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग में हम ना मालूमात रहती, हमें उनके साथ जो है रहती, हमारे नेचर में हमें देखे रहती, हमारे बहुत करीब भी रहती, लेकिन उनका फ़ायदा उपयोग का तो फ़ायदा और उनका खूबियाँ जो है ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ हमना मालूमात नहीं रहता, ಬಾರದಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು, हमारे जो है हमें उसके बारे में इल्म नहीं रहता या हमारे उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। कुछ पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग में रहती हैं, जस्ट हमें है सभी है तो वो भी है ऐसा समझ को रहती, लेकिन उनका फ़ायदा और उनकी खूबियाँ बहुत रहती, ये हमना मालूम नहीं रहता। ओके, तो ऑथर बोल रही हैं इसमें ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, कितने की पौधे और जो है दवाई के पौधे जो है अಳಿವಿನ अंचिदल्लिवे, वो ख़त्म होने के कगार पर ही, यानी वो नहीं सका होने के कगार पर, यानी आखिरी अब नहीं मिलते करने की हालत आ जा रही है। तो उनसे बहुत फ़ायदे हैं वो पौधे, वो जड़ी बूटियों के दवाएं के जो पौधे वो सब रहती, आज वो देखने का जो है चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि एक तरफ ख़त्म होते आ रहा है इंसान, जैसा उसकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है तो जंगलों को काटते जा रहा है, तो क्या हो रही है, ऐसे पेड़ पौधे जो है आज ख़त्म होने के या फिर वो तबाह होने के कगार पर चले जा रही। उसमें से एक अश्वत्थ वृक्षವನ್ನು अरली मरा, तो अश्वत्थ वृक्ष को यानी पीपल के पेड़ को देखो अरली मरा बोलती, बोधि वृक्षा कर को भी बोलती। पीपल का जो पेड़ है कन्नड़ा में देखो उसी को अश्वत्थ वृक्षा बोलती है। वृक्षा का तो भी पेड़, मरा का तो भी पेड़ यानी झाड़, वृक्षा का तो भी हाँ, अश्वत्थ वृक्षವನ್ನು यानी वृक्षा का तो भी झाड़िच, मरा का तो भी झाड़िच। तो अश्वत्थ वृक्षा, अरली मरा, बोधि वृक्षा, इसके 3 नाम हैं। ओके, बोधि वृक्षा, बुद्ध ने इस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन किया तो इसके लिए बोधि वृक्षा पड़ा। अश्वत्थ यहाँ आकर था तो पुराण के हिसाब से एपिक में इसके वास्ते इसी को अश्वत्थ वृक्षा भी बोलती, और अब होशा कन्नड़ा में जो है इसको अरली मरा भी बोलती। यानी तीनों का नाम एक ही पेड़ का है, लेकिन नाम अलग अलग है, तीनों का नाम जो है एक ही पेड़ का है। इसी को अश्वत्थ वृक्षा बोलते सो, इसी को अरली मरा बोलते सो। ओके, इसी को अश्वत्थ वृक्षा, इसी को अरली मरा, इसी को बोधि वृक्षा, तीनों नाम भी इसी के ही हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग नाम से पुकारा गया। बुद्धा बैठ को तपस्या की तो बोधि वृक्षा पड़ गया। अश्वत्थ यहाँ पे आया था तो उसका एक इंसिडेंट घटा था तो इसको अश्वत्थ वृक्षा पड़ गया। ओके, अरली मरा जो हमारे आधुनिक साहित्य मॉडर्न डेज के जो ऑथर्स उसको अरली मरा बुलाती, राइट। तो इस तरह से ये तीनों नाम से इसको बोधि वृक्षವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು, इस नाम से पुकारा जाता है। इस पेड़ को अश्वत्थ वृक्षा, अरली मरा, बोधि वृक्षವೆಂತಲೂ कर को बुलाती, करेयुವರು। मानवना इंसान के जो है वड़नाड़ियागी सातों साथ जो है अश्वत्थ मरा, इंसान जैसा जैसा तरक्की करते हुए आया या उन्हें मॉडर्नाइजेशन होते हुआ पहले से लेकर एपिक किताबों में देखे तो उससे लेकर अब तक भी जो है अश्वत्थ मरा या फिर ये जो अरली मरा जो है अनादि कालದಿಂದಲೂ बहुत पहले से जो है बहुत ही इसके फ़ायदे हासिल इंसान ने किए हैं, उपयोगदಲ್ಲಿದೆ। इंसान जो है उसके साथों साथ जो है इस पेड़ का जो है दोनों के साथ जो है इंसान और इस पेड़ जो अश्वत्थ मरा है ये दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता है कि बहुत पहले से जो है इंसान इस पेड़ का फ़ायदा उठाते हुए आया है, अलग अलग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए आया है बहुत पहले से, अनादि कालದಿಂದಲೂ। ಈ ಮರವನ್ನು, इस पेड़ को आम्लजनकದ बैंक को बोलती हैं, यानी आम्लजनक का मतलब ऑक्सीजन, तो मैं साइंस में पढ़ यानी ऑक्सीजन जो कि हमारी सांस लेने के वास्ते बहुत ज़रूरी वाला है ना गैस है, तो वो फॉर्म जो ऑक्सीजन है तो उसको बोलते हैं आम्लजनक का। तो इस पेड़ को आम्लजनक द बैंक यानी एक ऑक्सीजन बैंक कर को भी बोला जाता है, इंदु करेयुವರು। ओके, ನಮ್ಮ पूर्वजರು, हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े जो हैं उनको बोलती पूर्वजರು। ಈ ಮರದ, इस पेड़ की गुणವನ್ನು, खूबी को अरिते मालूमात कर को जो है प्रति ग्रामದ ಮುಂದೆ, हर एक गांव के सामने अरली मರದ ಜೊತೆಗೆ इस अरली मरा के पेड़ के साथ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು, नीम के पेड़ को भी ಬೆಳೆಸಿ ग्रो कर को उसको बढ़ा को सुत्तलू कट्टे गड्डी, उस पेड़ के अतराफ जो है कट्टा बनकर इस तरह से नागरकल्लू प्रतिष्ठापिसी, नागरकल्लू को तो दिखाया मैं जो है वो नाग भगवान को जो है देवता मानती, तो उसका जो है मूर्तियों को, स्टैचू को वहाँ स्थापना कर को जो है उसका पूजा करते थे, पूजिಸುತ್ತಿದ್ದರು। मतलब है क्या बोल रही, तो ये पिक्चर के साथ तुम ना समझा तो मालूम होता डिटेल। ये लाइन्स में क्या बोल रही नो को, तो हमारे बड़े, तो पिक्चर में देख सकती है अरली मरा, ये कट्टे, नागरकल्लू वहाँ है देखो, नाग भगवान की जो है स्टैचूस। ओके,
तो नम्मा पूर्वजरू हमारे बड़े जो है इस पेड़ की जो है खूबियों को और इसके फ़ायदों को मालूम रखते हुए, उसका इल्म जानते हुए हर गांव के सामने अरली मरा यानी नीम का पेड़, उसके साथों साथ नीम का पेड़ भी उगाते थे, बड़ा करते थे। बड़ा कर को उसके अतराफ कट्टा बन को, इस तरह से अरली कट्टे का कट्टे बन को उसके ऊपर नागर कल्लू, जो कि यहाँ देख सकते हैं नाग भगवान की जो स्टैचू है उनकी स्थापना कर को ओके पूजा करते थे। इसकी पूजा भी चलती थी, अभी भी चलता है। अरली मರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು, अरली मरा के जो पत्ते हैं उनको आड़ू हसू, तो इसके पत्तों में बहुत मज़े से खाती। कौन? आड़ू, छेलियाँ को बहुत पसंद, मज़ेदार दिखती इनको। उन्हों हसू गाय, ಎಮ್ಮೆಗಳು को तो भैंस तिन्नुत्तवे, वो खाते हैं। तो बहुत मज़े से जो छेली बकरी है ओके और गाय है और भैंस जो है इसको खाते हैं, इसके पत्तों को। हಣ್ಣುಗಳನ್ನು, इसके फल जो हैं हत्तारू पक्षिಗಳು, बहुत किस्म के जो परिंदे, 10 किस्म के जो है परिंदे अलग अलग, चाहे तोता हो, कौवा हो, चिड़िया हो, ऐसे बहुत सारे कोयल हो, मैना हो, है नहीं, तो इन तमाम परिंदे जो है आपको इसके फल खाती। पक्षिಗಳು और पक्षिಗಳು बर्ड्स जो हैं यानी परिंदे जो हैं, इसके खूबियाँ के बारे में लिख रही है, इसके फ़ायदे के बारे में बोल रही है अब आथर। ये फलाने इस पेड़ का देखो इन्हों सब फ़ायदा उठाती हैं, ये पेड़ रहा तो ओके। तो लोग जो है यहाँ पे नागर कल्लू, नाग भगवान की जो स्टैचू स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं और इसी पेड़ के पत्तों को ಎಲೆಗಳನ್ನು जो है आड़ू हसू ಎಮ್ಮೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, यानी जो है छेली गाय और भैंस खाते हैं। और फलों को हಣ್ಣುಗಳನ್ನು हत्तारू पक्षिಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, 10 किस्म के परिंदे खाते हैं। इतना ही नहीं, और इस पेड़ से और क्या फ़ायदा उठाते हैं? पक्षिಗಳು, परिंदे जो है गूड़ू कट्टी, यहाँ पे घोंसला बनते, इस पेड़ के ऊपर घोंसले बनती और वासा ಮಾಡುತ್ತವೆ। दे टेक एज ए शेल्टर, दे लिव हियर, दे बिल्ड द नेस्ट। तो परिंदे जो है अपना घोंसला बनकर उन्होंने रहना सहना भी यहाँ करती। ಅಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, 100 किस्म के कीड़े मकोड़ों को भी जो है रहने की जगह भी है, वासस्थान वो 100 किस्म के कीड़े मकोड़े भी इस पेड़ के ऊपर यानी करीब आसपास में रहते हैं। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, उपयुक्तवाद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला ये अरली मरावन्नु, अरली मरा के इस पीपल के पेड़ को नेट्टू, इसको लगाकर, इस पेड़ को लगाकर बदुकिना सार्थकते, अपनी ज़िंदगी की जो है ज़िंदगी की एक मकसद को पूरा करने के लिए कंडुकोंडा हृदय श्रीमंती की, एक दिल से अमीर रहने वाला मेरेदा, उस तरह से बनने वाला बंदा, कड़ू बड़तनदा, एक बहुत गरीब बंदा, शेषप्पा अगर कोई गरीब बंदा इस लेसन में आता है ओके, उन्हें एक गरीब बंदा लेकिन दिल से बहुत अमीर आदमी है, तो इन्हें अपने एक पेड़ और उसके कट्टे को बिल्ड कर को ज़िंदगी का मकसद को इसमें पूरा करता है। तो उसकी एक ये कामयाबी की यशोगाथया, उसकी एक कामयाबी की जो ये है सक्सेसफुल स्टोरी, उसको बोलते हैं यशोगाथे ओके। यशोगाथे का तो सक्सेसफुल स्टोरी, सार्थकते का तो एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है उसकी, एक मीनिंगफुल लाइफ बन को है ना। और एक सक्सेस स्टोरी यशोगाथे जो है प्रस्तुत गद्यದ ತಿರುಳು, ये सबक में आप जो पढ़ रहे हैं तुम्हें अरली कट्टे उस सबक में है। ಇಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು, ऐसी जो है मीनिंगफुल लाइफ को ಬದುಕಬೇಕು, जीना ಎಂಬುದು लेखकर आसे, ऐसी एक मीनिंगफुल तुम्हें भी जीना, एक लाइफ एक मीनिंगफुल रहना, इस तरह से जियो घर को एक माना देने वाली ज़िंदगी जीना, चूँकि सभी जिए घर को सब जीना नहीं, अपने वास्ते तो सभी जीते हैं ना, तो उस तरह से दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए भी फ़ायदा होना। तो इस तरह से ऑथर का एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जियो, एक मीनिंगफुल, एक माना देने वाली ज़िंदगी जियो। तो लास्ट 3 लाइन में क्या बोल रही, इस तरह का जो अरली मरा बहुत ही सबको फ़ायदेमंद हासिल होने वाला इस तरह का पेड़ को एक लगाती ओके, और एक माना देने वाली ज़िंदगी को उन्होंने जीती, दिल से अमीर रहते हुए गरीब बंदा जो रहता शेषप्पा इस तरह का पेड़ लगा को अपनी एक उनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी, उनकी कामयाबी की एक ज़िंदगी जो है इस लेसन में, प्रेजेंट लेसन में प्रस्तुता यानी प्रेजेंट लेसन में बताया गया है। और साथ ही साथ ऑथर बोल रही तुम्हें भी इस तरह की एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, एक माने देने वाली मीनिंग, सबको यूज़फुल होने वाली ज़िंदगी, इस तरह कुछ कर जाने वाली ज़िंदगी जियो कर को ऑथर रीडर से भी एक्सपेक्टेशन कर रही कर को ये लेसन इंट्रोडक्शन में बता रही ओके।
अब हमें वो शेषप्पक के बारे में ये लेसन में डिटेल से हमें जानते हुए जाएंगे। ओके, ऑलरेडी लेसन में रीड कर चुका हूँ, अब हमें वर्ड टू वर्ड लेसन में क्या है समझेंगे। नन्ना अब स्टोरी के जैसा फॉर्म में शुरू हो रहा है। डॉक्टर BGL स्वामी बोल रही सो, ओके, ऑथर बोल रही सो, उनकी एक घटना जो कि शेषप्पा का एक कामयाबी ज़िंदगी जो जिया उन्हें, सबको फ़ायदामंद हासिल होने वाली उस तरह की जियो घर को। तो ऑथर BGL स्वामी बोल रही, नन्ना चिक्कंदिनली, जब मैं मेरे बचपन में, मैं जब छोटा था, ओके, ऑथर BGL स्वामी बोल रही, लेसन लिखे नहीं सबक उन्होंने, जब मैं छोटा था या मैं मेरे बचपन का था, मैं बच्चा था तब, नम्मा हमारे मने गोब्बा, हमारे घर को एक बुजुर्ग बंदे, रुद्धरू को तो एक बुजुर्ग बंदा, ओके, उनको बोलती रुद्धरू, एक उम्र दराज के आदमी, बरुत्तिद्दरू आते थे, एक उम्र दराज के आदमी, एक रुद्धरू जो है बंदा जो है उनके घर आते थे, एक बुजुर्ग बंदा, ओके, एक उम्र दराज के जो शख्सियत उनके घर आते थे, ऑथर के घर आते थे। यहाँ पे ऑथर बोल रही सो वयस्सु, तो बुजुर्ग आदमी, वो उम्र दराज के आदमी की उम्र, वयस्सु एज सुमार 75ರಿಂದ 80, एक 75 से 80 साल हो सकता है, 75 से 80 साल हो सकता है, इरಬಹುದು। तो उनकी उम्र, जो इनके घर आते थे एक बुजुर्ग बंदे, एक उम्र दराज के आदमी, ओके, तो कभी कभी इनके घर आते थे, ये जो है ऑथर नोटिस करके थे, उन्होंने देख को थे, तो उनकी उम्र तकरीबन 75 से 80 साल थी। उनकी कैसी का तो उनकी अब ये जो उन्होंने कैसे दिखते थे करको अब बता रही सो, ओके, वो जो उनके घर में आते थे बुजुर्ग, जब छोटे थे, ऑथर BGL स्वामी उनके घर आते थे, उम्र दराज के आदमी, उन्होंने कैसे दिखते थे करको बोल रही। एक तो उनकी उम्र लगती थी कि 75 से 80 साल की हो। नेक्स्ट, कृशवाद देहा, बहुत ही बड़ा कलू बोलती कन्नड़ा में, बड़ा कलू देहा, कृषा का तो बड़ा कलू, पदगला अर्थ में 1 मार्क को पूछ सकते हैं। कृशवाद देहा, बड़ा कलू देहा, एक दुबला पतला सा शरीर, दुबला पतला सा शरीर, तुमने पिक्चर में दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरह से, एक दुबला पतला सा शरीर, कृशवाद देहा, दुबला पतला सा शरीर, उसको बोलते हैं कृशवाद देहा। कुड़ी बुद्ध कण्णु, गड़े हुए आंख, अंख्या ही अंदर चलेगी, उसको बोलते हैं कुड़ी बिद्दा कण्णु। दृष्टि मांद्या, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, लगभग ऑलमोस्ट पूरी खत्म होने की कगार पर थी या कम हो गई थी। ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಕಾನಂತೂ ಉನ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂತೋ ಉನ್ಕೆ ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಕಾಂತೋ ಉನ್ಕೆ ಕಿವಿ का तो कान यंतु कांतो कानांतो उनके ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕೆತ್ತೆಕಿ ಸಾಲ್ पहले ಹಿಂದೆ ಕೆತ್ತೆಕಿ साल पहले ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ अपने काम से जो है रिटायर आगे बिट्टी तो रिटायर्ड हो गए थे, यानी उनके कान जो थे बहुत साल पहले रिटायरमेंट ले लेते, यानी उन्होंने बहुत साल पहले ऐसा लगता था कि बूढ़े हो चुके थे, उनको ज़ोर से चिल्ला कर बोलना था, उनको सुनाई नहीं देता था, सुनाने की भी तकलीफ थी बेचारे को, देखने की भी तकलीफ थी। ओके, कई अल्ली, और साथ में कई अल्ली कोलू हिड़िया दे, हाथ में जो है बिना लकड़ी को पकड़े बिना लकड़ी को बिना पकड़े, बिना लकड़ी के सहारे, कई अल्ली कोलू हिड़िया बिना लकड़ी के सहारे, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು एक कदम भी, ಒಂದು ಗೊತ್ತು एक ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು कदम, एक कदम भी इड़ुवंतिरलिಲ್ಲ, एक कदम भी रखने नहीं होता था बेचारे को। ओके, नित्य भिक्षेइंद जीवना, हर रोज़ जो है वो घरे घर जाकर जो है मांग लेते हैं, चावल दाल तेल अलग अलग घर से, तो भीख मांग लेते हैं, तो और उसी से अपना ज़िंदगी करते और दूसरों को भी खिलाते बना को उसमें। तो ये था उनकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल। और उनके इस बुढ़ापे की उम्र में, इली वयस्सिनल्ली, इली वयस्सी, उनकी इस बुढ़ापे की, ये बुजुर्ग उम्र में ಇವರನ್ನು इनको ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು, कौन भी देखने वाले इरलिಲ್ಲ, कौन भी देखने वाले नहीं सका होगा था, इनको कोई देखने वाले नहीं सका होगा था। ओके, तो अभी इसमें तुम ना पूछ सकती, ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಷಪ್ಪನವರ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು करको पूछ सकती। ओके, शेषप्पा जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आता था, ओके, उनकी जो है सेहत किस तरह की थी, तो तुम्हें ये लिखना पॉइंट यहाँ से, उनकी उम्र तकरीबन 75 से 80 साल थी, एक दुबला पतला सा शरीर, दुबला पतला सा जिस्म था, कुड़ी बिद्दा कण्णु, गड़े हुए आंख थे, दृष्टि मांद्या, कम नज़र आता था, ಕಿವಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, काना तो कितने साल पहले की जो है अपने काम से रिटायर्ड लेते नहीं, बूढ़े हो चुके थे।
यानी कान से सुनाई नहीं देता था। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದೆ हाथ में बिना लकड़ी के सहारे ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, एक कदम भी रखने नहीं होता था। और नित्य भिक्षेಯಿಂದ जीवन, हर रोज़ जो है बेचारे भीख मांगकर जो अलग अलग घरों से दाल चावल तेल लाते उसी से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते। इली वयस्सिನಲ್ಲಿ इस बुढ़ापे की उम्र में ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। इस बुढ़ापे की उम्र में इनको कौन भी देख लेने वाले सका नहीं सका होगा था। तो ಇವರ ಹೆಸರು ಶೇಷಪ್ಪ ಎಂದೇನೋ ಹೆಸರು। इनका उम्र जो था इनका नाम जो था शेषप्पा, वो बुजुर्ग आदमी का नाम था शेषप्पा। तो यहाँ देख सकती शेषप्पा, समझो इनको एक तस्वीर फॉर एग्जांपल तुमने बता रहा हूँ। तो इनकी उम्र तकरीबन 75 से 80 साल थी। जो इनके अक्सर जो है आथर के घर जो अक्सर जो है हमारे इस लेसन के अरलीकट्टे लेसन में जो ऑथर थे बीजीएल स्वामी, उनके घर को आते थे एक बुजुर्ग उम्र दराज आदमी। तो उनकी उम्र तकरीबन 75 से 80 साल थी और जो दुबला पतला सा जिस्म था, आंखें गड़ी हुई थी, जो है आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी, कानों से भी सुनाई देना कम हो चुका था और बिना लकड़ी के सहारे एक कदम भी नहीं रख सकते थे बेचारे। और हर दिन एक थैला पकड़े हर घरे घर जाकर मांग लेते और उसी से लाकर गुजरान चलाते और दूसरों को भी खिलाते। तो इनकी इस बुढ़ापे की उम्र में कोई इनको देख लेने वाला नहीं सका होगा था। तो इनका नाम था शेषप्पा, इनका नाम था शेषप्पा। अब आगे देखेंगे क्या बोल रही। ईतनी गिद्दिद्दु, इनको जो था ईतनी गिद्दिद्दु एक्सक्यूज मी सॉरी चिल्ड्रन। ईतनी गिद्दिद्दु, इनको जो एक था ಒಂದೇ ಒಂದು आस, एक ही एक डिज़ायर था, एक आस इनको थी। इनकी एक आस थी जो कि एक उत्कटवाद आस है, एक बहुत बड़ी डिज़ायर, एक बहुत एक अच्छी एक स्ट्रांग प्रबला बोलती, एक स्ट्रांग एक इनकी आस थी। इस बंदे को, इस बुजुर्ग को एक आस थी जो कि बहुत ही स्ट्रांग आस, ज़बरदस्त किस्म की एक स्ट्रांग किस्म की एक आस, एक डिज़ायर थी। वो क्या कहते हो, कण्णु मुಚ್ಚುವುದರೊಳಗಾಗಿ, मैं मेरी आंख बंद होने से पहले, कण्णु मुಚ್ಚುವುದರೊಳಗಾಗಿ, आंख बंद होने से पहले, जब मौत आती है तभी, सोने का वक्त अलग है, परमानेंट आंख बंद करना का तो यानी मेरी मौत आने से पहले, मैं आंख बंद करने से पहले उसको, उस आस को ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ, उसको पूरा करना, उस आस को पूरा करने की एक आस थी, आस है। तो इनको एक ही एक आस थी, बहुत ही स्ट्रांग किस्म की डिज़ायर, एक आस थी, इच्छा थी। और वो मैं आंख बंद करने से पहले, मेरी मौत आने से पहले, मेरे सांस रुकने से पहले उसको पूरा करने की इनकी एक चाहत थी। ओके, वो क्या चाहत देखेंगे, क्या कहते हो, अश्वत्थ प्रतिष्ठे, एक पीपल का पेड़ का पौधा लगाना, पीपल के पेड़ को लगाना, अश्वत्थ प्रतिष्ठे, पीपल के पेड़ को लगाना। फिर प्रतिष्ठेयाद मरक्कुंदु, और वहाँ पे जो प्रतिष्ठे यानी स्थापना हुआ, बिल्ट हुआ, ओके, यानी बिल्ट, एक पेड़ को लगाना। अश्वत्थ का तो यहाँ पे अरली मरा, पीपल करको, ओके, पीपल या अरली मरा दोनों एक ही। अश्वत्थ मरा, अरली मरा, बोधि वृक्ष का तो तीन का नाम भी एक ही पेड़ को बोलते सो, ओके, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो अश्वत्थ प्रतिष्ठे, एक पीपल के पेड़ को लगाना, और इस तरह लगाने के बाद प्रतिष्ठेयाद मरकुंद, इस तरह पेड़ को अतराफ में कट्टे कट्टूद, उसके अतराफ में कट्टे बना, जो शुरू में दिखाया नहीं उसको, हमें उस पेड़ को अतराफ जो है कट्टे बनना। यानी इनकी एक डिज़ायर थी, आस थी, क्या कहते, एक में पेड़ लगाना, अरली मरा लगाना या अश्वत्थ मरा या बोधि वृक्ष, तीन भी इसी का नाम, ये लगाना। ये लगाने के बाद उसको मैं एक कट्टा का जो है एक स्थापना करना, बिल्ड करना वहाँ पे, मैं आंखें बंद होने से पहले, ओके। ये उनकी एक आस, डिज़ायर थी। समझ में आया बच्चों? तो तुम पूछ सकती हो उन मार्क्स को, शेषप्पनवर आसे ಏನಾಗಿತ್ತು, उनकी डिज़ायर क्या थी। एक अश्वत्थ प्रतिष्ठे यानी अश्वत्थ मरा को, यानी अरली मरा को लगाना। फिर प्रतिष्ठेयाद मरकुंदु, जो प्रतिष्ठे होता है यानी स्थापना होता है, पेड़ को वहाँ लगाया जाता है, लगाने के बाद उस पेड़ को मैं इस तरह से कट्टा बनना, कट्टे कट्टुವುದು, स्टोन बेंच बनना। ಈ ಎರಡೂ कर्तव्यಗಳ, ये दोनों ड्यूटी, ये दोनों काम, ಎರಡೂ कर्तव्यಗಳ, इन दोनों किस्म के जो है काम या ड्यूटी जो है हो रहे, इसका जिम्मे ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, उनके भुजाओं पर, उनके ऊपर था, ಭಾರವಾಗಿ ಹೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ये उनके ऊपर बहुत ही वज़नदार किस्म का जो है एक आस, उन बोझ के सका था, और ये बहुत उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ, और उनको
ये बहुत ही उनको ये पूरा हो जाता, काम में मर जाते उनकी ये करने से पहले करने का एक वज़न, उनकी एक सोच उनको बहुत जो है तकलीफ़ में रखता था कहते हैं। ओके, तो तुम ना इसमें क्या पूछ सकती तो ಶೇಷಪ್ಪನವರ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ऐसा पूछ सकते। एक तो अश्वत्थ प्रतिष्ठे करना, अश्वत्थ मरा लगाना, और उस पेड़ लगाने के बाद उसको एक कट्टे कटू, एक स्टोन बेंच बनना उसको, जिस तरह मैं दिखाया वो। और उनकी एक प्रॉब्लम क्या देती थी तो काम ही एक ड्यूटी, 2 ड्यूटी करने से पहले, पेड़ लगा कर उसको कट्टे करने से पहले काम ही अंख्या मुजाल तुमकी, हाँ पहले हो सोता जल्दी कर डालना कर को, इसका बोझ जो है एक डिज़ायर की बोझ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता था, बहुत उनको मुश्किल खड़ा करता था। ओके, और कुछ ना कुछ रुकावटें भी आते थे वहाँ। क्या कहते हो, ये कार्य का ये काम करने उन्हें जब भी कोशिश करते तो और ये काम करने के बहुत रुकावटें आते हैं। उससे पहले कहाँ उन्होंने तय करे थे उस जगह बनना, अगर ये कार्य कागी और ये काम करने के वास्ते उन्होंने उद्देश्य सीधा जो चाक होते ये जगह में मैं करना अगर को, तो वो जगह ये थी प्रदेश बसवनगुडियल्लिरुव बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में बसवनगुडी अगर को एक एरिया है, और बसवनगुडी में मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया मुंबागा, मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है बसवनगुडी में। बेंगलुरु में सिटी में एक बसवनगुडी नाम का एरिया है, तो उस बसवनगुडी में मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया मुंबागा एक टेम्पल के सामने, गुड़ी का तो टेम्पल है, मुंबागा का तो सामने, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के सामने मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया मुंबागा, कहाँ, बसवनगुडी में। तो उसका तस्वीर तुमने दिखाता हूँ। तो बसवनगुडी का मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर, ओके, पिक्चर में देख सकते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी दिखा रहा है। तो इस मंदिर के सामने मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया मुंबागा, इस मंदिर के सामने जो कि बेंगलुरु के बसवनगुडी में है। ओके, तो इस मंदिर के सामने उन्होंने तय करे थे ये जगह में मैं अरली कट्टे बनना, इस मंदिर के सामने बनना। ओके, तो वो अदु सरकार को, कॉरपोरेशन को, वो जगह जो थी गवर्नमेंट को की या फिर कॉरपोरेशन को की जमीन थी, सो जगह वो प्रॉपर्टी सेरिद्दु, वो प्रॉपर्टी जो जगह पे अरली मरा लगा को अश्वत्थ कट्टे बनना चाहते थे, वो जगह जो थी सरकार गवर्नमेंट को मिलने वाली थी या फिर कॉरपोरेशन वाले को जो जुड़ी हुई उनकी जगह थी, उनकी प्रॉपर्टी थी वो, इधर वो गवर्नमेंट की या फिर कॉरपोरेशन की जगह थी वो। उन्होंने जहाँ चाहे थे इस मंदिर के सामने बनना कर को वो जगह कट्टे हाकुವುದಕ್ಕೆ, इस तरह कट्टे बनने के वास्ते, इस तरह कट्टे उन्होंने बिल्ड करने के वास्ते ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ಏನೋ तकरारू ಎತ್ತಿದರು, क्या कि एक कुछ ना कुछ जो है उसके ये नहीं होता है, नहीं कर सकते कर को उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते। कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट वाले नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रॉपर्टी, तू कैसा बन डालता कर को, कुछ ना कुछ जो है रुकावटें आते, तकरार रुकावटें आते। और रुद्धर यत्न के इस बुजुर्ग आदमी के जो है ट्राई करने में विघ्नಗಳನ್ನು, रुकावटें भी डालते थे। ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ इस बात को लेकर ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಕೊಂಡು, इस बात को लेकर बात करने को जाने, ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ, बात करने जाने के वास्ते ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ, मेरे अब्बा के पास, बड़ी मेरे अब्बा के पास, मेरे पिताजी के पास उन्होंने आते थे, शेषप्पा आते थे इसके बारे में बात करने के वास्ते। ऐसा मैं डिज़ायर है करने गया तो ये गवर्नमेंट वाले, कॉर्पोरेशन वाले कुछ ना कुछ तकरार उठा रही। ओके, नहीं तो कैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला थी, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है ये डालती, इसकी जगह उसकी जगह कर को लिटिगेशन होते रहता है कर को, इसके बारे में बात कर ले आने के वास्ते तभी कभी कभी उनके वालिद के पास आते। कोनेगोंदु दिन, अट लास्ट डे, आखिरी में एक दिन जो है ऐसा दिन आता है, विघ्नಗಳು निवारणೆಯಾದವು, सारी रुकावटें दूर होगी। शेषप्पा को जो जो रुकावटें आती थी वो सारे रुकावटें दूर हो गई। ओके, तो इसमें क्या क्या बोल रही, एक अरली कट्टे लेसन में पीपल का पेड़ का जो है स्टोन बेंच। ओके, तो मेरे बचपन में आथर बोल रही है, सबसे पहले मैं जब बचपन का था, बीजेल स्वामी बोल रही, तो हमारे घर में एक उम्र दराज से एक बुजुर्ग आदमी आते थे, उनका उम्र जो है 75 से 80 साल, और जो है उनका दुबला पतला सा जिस्म, गड़े हुए आँखें और कम नज़र आता था, गाना तो कब की सुनाई नहीं देते। ओके, हाथ में एक स्टिक पकड़कर एक कदम भी आगे नहीं रख सकते थे, और हर दिन जो है भीख मांगकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारते थे। और इस बुढ़ापे की उम्र में उनको एक डिज़ायर था कि
वो मेरे आंख बंद होने से पहले वो फुलफिल हो जाना। वो क्या कहते हो, एक में पेड़ लगाना, अश्वत्थ मरा लगाना, अरली मरा को एक लगाना, और उस अरली मरा को में स्टोन बेंच बिल्ड करना, उसको बैठने के वास्ते कट्टा बनना। ओके, ये दोनों ड्यूटी उनके वास्ते बहुत ही सरदर्द बन गए थे। तो इस काम के वास्ते उन्होंने सेलेक्ट करते प्लेस को सता का तो बसवनगुड़ी है, ये भी पूछ सकते हैं। और बयसिद्ध जाग याವುದು अगर को 1 मार्क को पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हुआ। देखो तो तुम ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ಏನು ಮಾಡಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವನ, ये भी ಕವರ್ हो गया। ಓಕೆ, ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ, यानी अश्वत्थ मरा का जो स्टोन बेंच बिल्ड करने के वास्ते कौन सी जगह सेलेक्ट करे थे तो बराबर लिखना। तो ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया ಮುಂಭಾಗ, बेंगलुरु के बसवनगुड़ी एरिया में मल्लिकार्जुन स्वामी का एक मंदिर है, उसके सामने की जगह में ये करना, क्या वो पेड़ लगाना और उसको एक स्टोन बेंच बिल्ड करना करने की डिज़ायर थी। ओके, तो ये लेकिन क्या था तो ये जगह जो सेलेक्ट करे थे वो कॉरपोरेशन वाले को कि गवर्नमेंट वाले को जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने खाली क्या तो भी लिटिगेशन तकरार डालते थे। तो इस तरह से बहुत सारे रुकावटें उनके इस काम में आते थे। तो कभी कभी इसके सिलसिले में बात करने के वास्ते ऑथर के अबू जो बीजेल स्वामी के ऑथर, बीजेल स्वामी जो ऑथर इस सबक के ऑथर है, उनके वालिद से बात करने के वास्ते तब जो है उन्होंने शेषप्पा उनके पास आते थे। ओके, तो अट लास्ट एक दिन ऐसा आ गया कि ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ವಿಘ್ನಗಳು निवारणे, एक दिन ऐसा आया कि जितने भी रुकावटें थे, जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे दूर हो गए, सभी रुकावटें दूर हो गए। ओके, तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने आती 3-4 क्वेश्चंस इसी में आया थी, इसी पैराग्राफ में। एक ಅವರ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, उनकी सेहत कैसी थी पूछ सकती, ಅವರ ಕೆಲಸವೇನು, ओके उनका काम क्या था, भिक्षೆಯಿಂದ ಜೀವನ, ओके ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, उन्होंने ज़िंदगी बसेरा करने के वास्ते क्या कर सकते थे, भिक्षೆಯಿಂದ ಜೀವನ। ओके, और एक क्वेश्चन का उत्कटवाद आस, उनकी एक बड़ी आस थी, वो बड़ी आस क्या, अश्वत्थ प्रतिष्ठೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು। देखो 1 मार्क के 2 हुए, 1-2। नेक्स्ट ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, उन्होंने कौन सा प्लेस सेलेक्ट करे थे, 1 मार्क का अगेन, कौन सा, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ। नहीं तो यहाँ से लिखो, पहले बेंगलुरु पहले लिख डालो, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ मल्लिकार्जुन स्वामी गुड़िया ಮುಂಭಾಗ। बेंगलुरु के बसवनगुड़ी के एरिया में जो मल्लिकार्जुन गुड़िया ಮುಂಭಾಗ टेम्पल है उसके सामने की जगह, गुड़िया ಮುಂಭಾಗ लिखना, वो मंदिर में करके लिख डालना नहीं, बाद में गुड़िया उस टेम्पल के सामने की जगह में। ओके, 1 मार्क के 3 कवर हो गए। और 2 मार्क्स का क्या पूछ सकती, देहारोग्यದ स्थिति, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी थी, देहारोग्यದ स्थिति। देखो 3, 4, 5 मार्क्स का कवर होगा। देहारोग्यದ स्थिति ಹೇಗಿತ್ತು, देखो यहाँ से उनकी एज, उन्होंने कैसे दिखते थे, क्या क्या उनके जिस्म के आज़े कैसा कम हो गए थे, वर्क होना, उम्र होते होते हर जिस्म के आज़े स्लो हो जाती नहीं काम करना, तो वैसा उनके साथ हुआ था। तो वो चीज़ें, तमाम चीज़ें तुम्हें लिखना है। तो हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी थी, हाउ इज वाज लुकिंग, ओके फिजिकल स्टेटस उनका कैसा था कर को लिखती हैं। तो 2 मार्क का देखो, ये 2 मार्क का, तो इस पेज में एक 2 मार्क्स का कवर हुआ, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, टोटल कितने हैं 5 मार्क्स के। देखो ये पेज में 5 मार्क्स के कवर हो गई। तो तुम ना अभ्यास प्रश्नों में वो आती। तो आज हमें ये क्लास में पाठ प्रवेश करिया, ओके लेसन रीडिंग करिया, हमें पाठ प्रवेश और लेसन रीडिंग भी करिया, उसके बाद में वर्ड टू वर्ड समझाया, और इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल 5 मार्क्स की वो भी बता को दिया हूँ। ओके, इसका आगे का पार्ट लेसन हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे, क्या बोलना चाह रहे हो, तमाम चीज़ें अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रंस।